السلام علیکم، شام کے 5 بجے اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC تیز۔ میں ہوں بشرا حق اور میں ہوں اویس اقبال۔ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ ملک بھر میں ملی جذبے کے ساتھ یوم آزادی کا جشن، پرچم کشائی، قومی ترانہ، مزار قائد اور علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی۔ وزیر اعظم کا یوم آزادی پر خطاب، کہتے ہیں نگران حکومت سمیت اہم قومی مسائل پر اپوزیشن سے مذاکرات کے قائل ہیں۔ یوم آزادی پر بابائے قوم کے مزار پر رش، بانیان پاکستان کے مزارات پر ویرانی، سرکاری شخصیات کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق بھی نہ ہوئی۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ آئندہ انتخابات میں عوام سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالیں۔ یوم آزادی پر کراچی میں سخت سیکیورٹی کے باوجود بھی دہشت گردی نہ تھم سکی، 4 افراد جان سے گئے۔ یوم آزادی پر دہشت گردی کا خطرہ، کوئٹہ میں آج موبائل سروس معطل۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ گوانتانامو بے سے طالبان رہنماؤں کی رہائی کا تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ How did you do that? Lucky man. ہالی ووڈ کی ایکشن فلم کا ایکسپینڈیبلز 2 کا لندن میں پریمیئر۔ انڈر 19 عالمی کپ پاکستان کل آخری گروپ میچ میں نیوزی لینڈ سے ٹکرائے گا۔ اور سمارٹ فون کے ذریعے گاڑی چلانے کی تیاریاں، آسٹریلوی سائنسدانوں کا منصوبے پر کام جاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ فرمائی، بڑھتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ پاکستانی قوم اپنا جشن آزادی آج روایتی جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن۔ دن کا آغاز فجر کی نماز کے بعد وطن عزیز کی سلامتی، خوشحالی، آئین و قانون کی سربلندی اور سرحدوں کی حفاظت کی خصوصی دعاؤں سے ہوا۔ سرکاری سطح پر دن کا آغاز وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی سے ہوا۔ وفاقی دارالحکومت کے اسپورٹس کمپلیکس میں 31 توپوں کی سلامی دی گئی، جبکہ صوبائی دارالحکومتوں کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور گلگت بلتستان میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ جشن آزادی کے سلسلے میں وفاقی دارالحکومت، آزاد کشمیر، چاروں صوبائی دارالحکومتوں سمیت ملک بھر میں تقریبات منعقد ہوں گی۔ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پرچم کشائی کی، جس کے بعد قومی ترانہ بجایا گیا۔ ملک بھر میں سبز ہلالی پرچموں کی بہاریں ہر جانب دل افروز مناظر پیش کر رہی ہیں۔ بچے، بوڑھے اور جوان پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ ہر گلی محلے میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ گئی ہے۔ ملی نغموں کی گونج ہر سو سنائی دے رہی ہے۔ سرکاری اور نجی عمارتوں پر سبز ہلالی پرچم لہرائے جا رہے ہیں، جبکہ وطن سے محبت کا جوش و جذبہ ہر شہر میں دیدنی ہے۔
और वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि जमहूरियती पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है और मुल्क की बका इसी से वाबस्ता है। यौम आज़ादी के मौके पर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि बलूचिस्तान का मसला गुज़श्ता हुकूमतों की गलत पॉलिसीज़ का शाखसाना है, मसले को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करना चाहते हैं। राजा परवेज़ अशरफ का कहना था कि उनकी ख्वाहिश है कि आइंदा इंतख़ाबात में बलूचिस्तान की तमाम सियासी जमातें हिस्सा लें। वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा इंतख़ाबात को शफ़ाफ बनाने के लिए अपोजिशन को एतमाद मिले रहे हैं। निगरान हुकूमत के क़याम और अहम कौमी मामलात पर अपोजिशन से मुज़ाकरात के कायल हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें की जा रही हैं। कोयले से बिजली की पैदावार के लिए काम तेज़ी से जारी है। उधर सदर आसिफ अली जरदारी ने 65वें यौम आज़ादी पर एयरफोर्स के 35 अफसरान और 192 सिविल शख्सियात के लिए एजाज़ात का ऐलान किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 7 शख्सियात को निशान इम्तियाज़, 1 को हिलाल पाकिस्तान, 17 को हिलाल इम्तियाज़, 1 को सितारा पाकिस्तान, 3 को सितारा शुजात, 45 को सितारा इम्तियाज़, 24 के लिए सदारती तमग़ा हुस्न कारकर्दगी, 1 को तमग़ा पाकिस्तान, 15 को तमग़ा शुजात, 76 को तमग़ा इम्तियाज़ और 2 को तमग़ा कायदे आज़म देने का ऐलान किया है। सदर मुमलिकत ने पाक फ़िज़ाए के 35 अफसरान के लिए नॉन ऑपरेशनल फ़ौजी एजाज़ात देने का भी ऐलान किया है। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है, मगर बानी पाकिस्तान के साथ तहरीक पाकिस्तान में शरीक अकाबरीन के मज़ारात पर किसी हुकूमती या सियासी शख्सियत को हाज़री की तौफ़ीक हुई और ना कराची में उन अकाबरीन के मज़ारात पर जश्न आज़ादी की मुनासबत से इंतज़ामात की जसारत हुई। मज़ीद तफ़सीलात देखते हैं SM अमीन शाह की इस रिपोर्ट में। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। जश्न आज़ादी के रोज़ तहरीक पाकिस्तान के रोशन सितारे अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, मुअर्रिख़ पाकिस्तान सैयद सुलेमान नदवी और दूसरे अकाबरीन पाकिस्तान के मकबरों की हालत ज़ार हुकूमत और सियासी क़यादत के लिए किसी लम्हा फ़िक्रिया से कम नहीं। बानी पाकिस्तान के मज़ार से चंद फरलांग के फासले पर वाक़े अकाबरीन पाकिस्तान के मकबरे पर किसी सरकारी या सियासी शख्सियत को फातिहा पढ़ने की तौफ़ीक हुई, न जश्न आज़ादी की मुनासबत से सफाई सुथराई के इंतज़ामात की जसारत। ये हमारी गफलत है और नाअहली है और हुकूमत वक्त को भी चाहिए और दूसरे तमाम सियासी जमातों के मिलकर वो सफाई भी करे और उनके मज़ारात पे हाज़री भी दिए जाए, इसलिए कि ये तो एहसान फरामोशी होगी अगर हम इनको फरामोश कर दें। बानी पाकिस्तान हज़रत कायदे आज़म की ख्वाहिश पर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली परचम कुशाई का एजाज़ अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी को हासिल है। तहरीक पाकिस्तान की कामयाबी और मगरबी सूबा सरहद के रेफरेंडम की फतह हो या इस्लामी आइन के निफाज के लिए करारदाद मकासिद, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी के कारहाय नुमायां में सर फहरिस्त हैं। जश्न आज़ादी के मौके पर हुकूमत ही नहीं, अकाबरीन पाकिस्तान की कद्र मंजिलत के अलमबरदार मुस्लिम लीगियों और दूसरे सियासी ग्रुपों ने भी उन्हें फरामोश कर दिया। हुकूमत के साथ हमारे जो इदारे हैं जो आते हैं उनको भी ये चाहिए कि उनको भी उसके लिए इस बात को हाईलाइट करें कि भाई उनको भी तवज्जो देनी चाहिए। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी की खिदमात के एतराफ़ में महकमा डाक ने कई यादगारी टिकट जारी किए, जबकि बानी पाकिस्तान की नमाज जनाजा पढ़ाने की सआदत भी अल्लामा उस्मानी को हासिल है। जश्न आज़ादी के मौके पर तहरीक पाकिस्तान की इन नामवर शख्सियात के मकबरे कौमी बेहिसी पर मातम कुना है। आज़ादी की सालगिरह पर अकाबरीन पाकिस्तान को नज़रअंदाज करने और एहसान फरामोशी का ये अमल हुकूमत और सियासी क़यादत के लिए सवालिया निशान है। कैमरामैन इमरान खान के साथ SM अमीन शाह, CNBC पाकिस्तान, कराची। मुल्क भर में जश्न आज़ादी शान शान तरीके से मनाया जा रहा है, लेकिन तहरीक पाकिस्तान में शरीक बानी पाकिस्तान कायदे आज़म के साथियों को न सिर्फ फरामोश कर दिया गया है, बल्कि यौम आज़ादी के मौके पर किसी सरकारी शख्सियत को उनके मज़ारात पर हाज़री की तौफ़ीक भी नहीं हुई है।
ایک طرف تو मज़ार कायद पर अवाम का रश है, तो दूसरी जानिब तहरीक पाकिस्तान के दीगर अहम रहनुमाओं के मज़ारात पर सिर्फ खाक उड़ रही है। हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से हम किसी भी हुकूमती रहनुमा से बात करें, किसी भी हुकूमती नुमाइंदे से बात करें, उनसे पूछें कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के जो मज़ारात हैं उनकी देखभाल की जाती है, लेकिन जो दीगर अकाबरीन हैं, तहरीक आज़ादी के जो दीगर रहनुमा हैं, उनके जो मज़ार हैं उनकी उस तरीके से देखभाल नहीं की जाती जिस तरह से की जानी चाहिए। क्योंकि ज़िंदा कौमों का यही शेवा होता है कि वो अपने पास्ट के हीरोज़ को याद रखते हैं, उनके जो फरमान होते हैं, उनके जो फरामीन होते हैं, उनकी जो हिदायत होते हैं, उससे मुस्तक़बिल के लिए वो रहनुमाई भी लेते हैं। मुल्क भर में जश्न आज़ादी शान शान तरीके से मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी ये हाल है कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार को छोड़कर जो दीगर अकाबरीन थे, दीगर तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा थे, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी हो गए, चौधरी रहमत अली हो गए, डॉक्टर सुलेमान नदवी हो गए, कि तमाम वो लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया। इसी हवाले से बात करते हैं डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली शहला रज़ा साहिबा से। बहुत बहुत शुक्रिया शहला रज़ा साहिबा CNBC पाकिस्तान से बात करने का। आप क्या समझती हैं कि जो इन तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ सलूक किया जा रहा है हुकूमती सतह पर इनके मज़ारात के साथ, क्या ऐसा किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने इतने सेंसिटिव टॉपिक पे मुझको लिया, और मैं तो आप तो फिर पहुंचे शब्बीर अहमद उस्मानी और नदवी साहब की तरफ। मैं अगर ये कहूँ कि हमारे यहाँ लोगों को ये भी नहीं मालूम कि फातिमा जिन्नाह साहिबा की सालगिरह कब आती है और क्या उनका डेट ऑफ बर्थ है। और हाँ, उस दिन मैंने ये देखा, देखिए हम एक कौम है, इसको हम अगर डिवाइड कर दें कि जी फलां मीडिया है ये वो एक अलग बात है, लेकिन हम सब एक से हैं। जिस दिन फातिमा जिन्नाह साहिबा की सालगिरह थी, मेरे पास ऑफिशिएटिंग गवर्नर चार्ज था, और उस दिन मैं सुबह से देख रही थी कि इंडियन अदाकार किसी की सालगिरह थी कि वो कितने बरस के हो गए, किसी को फातिमा जिन्नाह याद नहीं थी। यहाँ तक कि एज गवर्नर मैंने वहाँ जाके फातिहा पढ़ी। शहला रज़ा साहिबा, ये सारी बातें जिनकी जानिब हम आपकी तवज्जो दिला रहे हैं, आप भी वही कह रही हैं कि कोई तवज्जो नहीं दी जा रही इन मज़ारात के ऊपर, लेकिन आप तो हुकूमत की रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपसे ये सवाल किया गया है कि इन मज़ारात की जो खस्ता हाली है उसकी जिम्मेदार अगर हुकूमत नहीं तो फिर कौन है? हाँ, सवाल का जवाब ही की तरफ मैं आ रही हूँ। देखिए, इससे पहले तो ये था कि वफाक के पास कल्चरल का जो है डिपार्टमेंट था, और वहाँ से जो है हमें वहाँ से बजट एक एलोकेट होता था, और वो इतना नहीं था कि जितने भी मज़ारात हैं सिंध में, और मोस्टली सिंध में ही बहुत हैं, कि उन सबको देखा जाता। बास की इतनी खस्ता हालत थी, अगर हम सक्खर की या इधर की तरफ जाएं कि वहाँ पे मासूम शाह का मीनार है या कुछ है, तो उनके बाकायदा हिस्से टूटे हुए रखे हैं। या अगर हम मीरपुर खास से आगे की तरफ जाते हैं तो जो हमारे चीज़ें हैं वो तकरीबन टूट गई हैं, जो किले वगैरह हैं। तो अब जैसे ही ये डिवॉल्व हुआ है तो ये बजट इंक्रीज हुआ है, और आहिस्ता आहिस्ता इन सबको इंशाल्लाह देखा जाएगा। मज़ार तो अच्छे फिर भी किए जा सकते हैं, लेकिन मेरी जो कहने की बात थी वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है कि हमें ये भी याद नहीं है कि फातिहा पढ़ लें किसी की किस दिन। चलिए, हम तवक्को करेंगे कि ये सूरत हाल जल्द अज जल्द बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया शहला रज़ा साहिबा CNBC पाकिस्तान से बात करने का।